Assalamu alaikum friends. Hello everyone. So let's start with accounting standard 3, cash flow statement. If you remember our unit 1 where we talked about the applicability of accounting standards, we learned that the accounting standard 3 cash flow statement is mandatory for level 1 entities, right? However, others can prepare it for their better informative purpose. However, it is not mandatory for other entities, right? It is just mandatory for level 1 entities. So let's start with our text, and thereafter we will move with our revision part with our chart, right? So this standard is mandatory for the enterprises which fall in the category of level 1 at the end of relevant accounting period. Right? Now, where an enterprise was not covered by this statement during the previous year but qualifies in current accounting year, they are not supposed to disclose the figures for corresponding previous years. If it was not covered for the applicability of this statement in previous year and now it is getting eligible, so this enterprise need not disclose the figures of previous year for the cash flow statement. Only for current reporting period they will need to prepare cash flow statement, right? Yes. Now, whereas if an enterprise qualifies under this statement to prepare cash flow during previous year but now disqualified, will continue to prepare cash flow statements for another 2 consecutive years. If you recall it, in chapter number 3 unit 1 we learned that for the applicability criteria, if you are coming out of the eligibility of level 1, then you need to wait for 2 consecutive years. You need to mandatorily follow accounting standard for 2 consecutive years, though not being level 1. And if thereafter 2 years, if you continue to be level 2 or level 3, then you can get the benefits and relaxations from these standards that are available to level 3 entities, right? But if you become again level 1 entity after 2 consecutive years, no relaxations, no benefits in this 2 years also and thereafter too, right? So here also if you see, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप डिस्क्वालीफाई हो गए इस साल से लेवल 1 बनने के लिए, तो यू नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो दो फॉर दिस 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. ये तो हमने वहाँ यूनिट 1 में पढ़ लिया है, हाँ, कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल 1 के हिसाब से फॉलो करने पड़ेंगे. यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट, एनी रिलैक्सेशन फॉर दिस 2 consecutive years. Right? So let's start with the objective. Now what is cash flow statement, right? So it is just an additional information provided to users of accounts in form of a statement which reflects the various sources from where cash was generated, that is the inflow of cash, and how these cash inflows were utilized, that is the outflow of cash. Right, my dear students, cash flow statement is just a statement wherein from where the enterprise generated cash, that is all the cash inflows in an enterprise during the relevant accounting period will be reported, and all the cash payments, that is outflows during the relevant accounting period will be reported. Now, what are the objectives of this statement? It will help users of accounts to identify historical changes in flow of cash and cash equivalents.
कैश फ्लो मतलब लास्ट हमारा पूरा साल बीता, उसमें हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कितना चेंज है वो हमें पता चलेगा. देयर आफ्टर वी विल नीड अंडरस्टैंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. हमें कितनी ज़रूरियात है कैश की आगे वो भी पता चलेगा. एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हमारी कितनी एबिलिटी है कैश को जनरेट करने की वो भी पता चलेगा. फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ जनरेटिंग कैश, आगे कितना कैश हमें जनरेट करना चाहिए, हमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी और उस हिसाब से हमें कितना कैश जनरेट करना चाहिए वो पता चलेगा. स्टडी अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन, कंपेयर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइज. ऑपरेशनली एंटरप्राइज कितना एफिशिएंट है अपने एक्टिविटीज़ में से, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, राइट. An indicator of amount, timing, certainty of future cash flows. It will indicate you any future cash flows or their timing or about their amounts. Check the accuracy of past assessment of future cash inflows. It will give you an accurate it will check about the accuracy of these cash flows and examine the relationship between profitability and net cash flow and the impact of changing prices, right. now अभी profitability, आपका profit तो बहुत ज़्यादा आ गया लेकिन आपका cash position क्या है, are you liquid, are you solvent, राइट. तो वहाँ से आपका कैश पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन का अच्छे से कंपैरिजन हो सकता है. एंड देयर ऑल्सो कि महंगाई कितनी है उस हिसाब से आपके एंटरप्राइज पे, आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा उसका भी आपको पता चलेगा, राइट. अब यहाँ पे सिर्फ कैश रिपोर्ट नहीं किया जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स रिपोर्ट किया जाता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अगर हम कैश की बात करें तो कैश इन हैंड, जो रुपया आपके हाथ में है वो, राइट. एंड डिपॉजिट्स रिपेएबल ऑन डिमांड, डिपॉजिट्स रिपेएबल ऑन डिमांड विद एनी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो ये हुआ हमारा कैश. और कैश इक्विवेलेंट्स में कौन सी चीज़ें कवर होगी, जो भी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है जो 3 मंथ्स के अंदर मैच्योर हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो सभी इन्वेस्टमेंट्स जो रेडिली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, वो सभी इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्विवेलेंट्स बोले जाएंगे, राइट. सो ये हुआ हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नॉट नॉर्मली टेकन एज कैश इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद देम एज टू रियलाइजेबल वैल्यू. इन्वेस्टमेंट इन शेयर को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, कैश इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका रियलाइजेबल वैल्यू हर वक्त अलग रहता है. उस हिसाब से अनसर्टेनिटीज बहुत होती है, इसलिए हम उसको लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, राइट. तो आपको यहाँ से पता चल गया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, right. What are the objectives and what do you mean by cash and cash equivalents, right. now if you what do you mean by the cash flow. so cash flow मतलब के flow मतलब के एक जा रहा है कुछ आ रहा है, मतलब एक फ्लो चल रहा है, कुछ ऐसे ही जा रहा है, पसार हो रहा है, राइट. तो एंटरप्राइज में जब हम बात करें कैश के टर्म्स में, तो कैश जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है. पूरे साल में कई 100 बार अपना कैश बाहर जाता है, आता है बाहर जाता है, आता है बाहर जाता है. इट इज़ कंटिन्यूअली गोइंग ऑन. तो ये हुआ कैश फ्लो, मतलब इट कवर्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट. सो अभी जब हम कैश फ्लो की बात करें, सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट चेंज इन कैश नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कैश फ्लो. कैश में कोई चेंज आने से कैश फ्लो नहीं हो सकता है. उसका एग्जाम्पल क्या है, बैंक बैलेंस इज 10,000 स्टेटेड इन बुक्स एट 4,90,000 यूजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज 49. इफ क्लोजिंग रेट इज 50, बैंक बैलेंस विल बी रीस्टेटेड एट 5 lakh. सी दिस इंक्रीज इज हाउएवर नॉट अ कैश फ्लो बिकॉज नीदर देयर इज एनी कैश इनफ्लो नॉर देयर इज एनी कैश आउटफ्लो. सो अगर कोई कैश में ऐसे ही चेंज आ रहा है, सिंपली उसको हम कैश फ्लो नहीं बोलते हैं. हकीकत में कुछ कैश रिसिप्ट होने से, मूवमेंट होने से, या सिर्फ मूवमेंट होता है उसको हम नहीं बोलेंगे, सॉरी सिर्फ चेंज होता है उसको नहीं बोलेगा. हकीकत में कोई मूवमेंट हो रहा है का, या तो कैश रिसिप्ट हो रही है या तो कैश पेमेंट हो रहा है, तब हम जाके उसको कैश फ्लो बोलेंगे, राइट. अभी यहाँ पे उन्होंने बोला कि उनका $10,000 का बैंक का बैलेंस बोल रहा है, तो अगर 49 के एक्सचेंज रेट से मिलाएंगे तो 4,90,000, 50 से करेंगे तो 5 lakhs. तो ये 10,000 का जो इंक्रीज है, इट इज़ नॉट अ कैश रिसिप्ट, नॉट अ कैश इनफ्लो, जस्ट अ चेंज ड्यू टू द एक्सचेंज रेट्स. तो इसको हम कैश
कैश फ्लो नहीं बोल सकते हैं, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, डिपेंडिंग ऑन द एंटरप्राइज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कैश फ्लोज आर डिफरेंट फ्रॉम enterprise to enterprise, right? So it also occurs in various ways: through operating income or expenses, by borrowing or repayment of borrowings, or by acquisition or disposal of fixed assets. It may be noted that implications of each cash flow types are interrelated. अब यहाँ पे कैश फ्लो तो हमने समझ लिया कि मूवमेंट ऑफ कैश मे बी इनफ्लो मे बी आउटफ्लो, बट here we will learn the three types of cash flows, that is operating, investing and financing cash flows, right? तो ये पूछो तीनों टाइप्स के कैश फ्लोज है, सभी इंटर रिलेटेड है, लेकिन हर एक एंटरप्राइज के लिए अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से सभी अलग अलग रहते हैं, राइट ना। For example, borrowed cash used for meeting operating expenses is not same as borrowed cash used for acquisition of useful fixed assets. अभी हमने बोरोइंग्स तो कर ली, मानो हमने बोरोइंग्स की फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, सो इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बोरोइंग्स, राइट। अगर हमने बोरोइंग्स की हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, हमारे ऑपरेटिंग या फिर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो इट इज़ अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ बोरोइंग्स। तो यहाँ पे इंटर रिलेटेड है दोनों के बोरोइंग्स है, लेकिन दोनों का पर्पस चेंज होने की वजह से उनका टाइप चेंज हो जाएगा, राइट, उनका पूरा क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। सो वैसे उस हिसाब से भी और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, so separate presentation of each type of cash flow in cash flow statement improves usefulness of cash flow information. So when you are talking about cash flow statement, we divide our cash flow statement into these three types of cash flows, that is operating, investing and financing, right? तो हमारा cash flow statement हम इन तीन एक्टिविटीज में हमारे कैश फ्लोज को हम डिवाइड कर देंगे। अभी हम एक एक के समझे कि ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, फिनेंसिंग का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ें इनमें कवर होगी, राइट, विद देयर एग्जांपल्स। अभी अगर हम ऑपरेटिंग की एक्टिविटीज से स्टार्ट करें, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज से स्टार्ट करें, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वो है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं। मतलब कि आपका जो मेन बिजनेस है उसको रन करने से आपको जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनको आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बोलेंगे। मानो आपने बिजनेस के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स को सेल किया, आपने क्रेडिट पे सेल किया, डेटर का रिसिप्ट हुआ, या फिर आपने सप्लायर को पेमेंट किया, ये सभी आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो दैट विल बी कवर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ enterprise. All the examples are given here, right? I hope you are getting through the point. See, it is a very easy standard and mark scoring. It is really a scoring standard, right? आपको इतना आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपने इस तीन क्लासिफिकेशन को समझ लिया कि ऑपरेटिंग में कौन सी चीज़ें जाएगी, इन्वेस्टिंग में कौन सी चीज़ें जाएंगी और फाइनेंसिंग में कौन सी चीज़ें जाएंगी। इट इज़ वेरी वेरी ईजी, राइट। नाउ इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, अब हम इन्वेस्टिंग पे आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स में है, आप उसमें कोई सेल किए या परचेज किए या उसके लिए आपको कोई इनकम डिराइव हुई या कोई एक्सपेंस हुआ, उन सभी को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कवर करेंगे। उनका एग्जाम्पल है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से आपको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपने किसी को लोन दिया या फिर लोन लिया कि वो अभी किसी अदर एंटिटी को, तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपने फिक्स एसेट्स खरीदा, यहाँ पे कवर हो जाएगा। आपने फिक्स एसेट को बेचा, यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। सो दिस आर ऑल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। जो कैश इक्विवेलेंट में कवर नहीं हो रहे वह सभी इन्वेस्टमेंट्स को आप यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट, financing cash flows. So these are cash flows that are generated by financing activities, that is they result from change in size,
एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल के साइज में और उनके कंपोजिशन में कोई चेंज आए तब ये फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ को में डिस्प्ले करेंगे हम। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड ऑल द बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज, वो सभी फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगे। उसका एग्जांपल है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया और आपके मनी का रिसिप्ट हुआ, आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू किया, आपका मनी का रिसिप्ट हुआ, आपने डिबेंचर्स इश्यू किया, आपका मनी का रिसिप्ट हुआ, ये सभी यहाँ पे कवर होगा। रिडम्पशन किया आपने प्रेफरेंस शेयर्स का, रिडम्पशन किया आपने डिबेंचर्स का, ये भी यहाँ पे कवर होगा। आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी यहाँ पे कवर होगा। आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया, वो भी यहाँ पे कवर होगा, राइट। तो ये हुआ हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अभी एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, ये 3 एक्टिविटीज़ में हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड दी गई है स्टैंडर्ड के हिसाब से। वो 2 मेथड का नाम है, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इनडायरेक्ट मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीफर डायरेक्ट मेथड को करता है। फॉर बेटर इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन डायरेक्ट मेथड इज़ गुड। लेकिन जब हम ये 3 एक्टिविटीज़ की बात करें, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग, उन दोनों के लिए कंपल्सरीली डायरेक्ट मेथड है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करें, यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। जो हमने मेथड की बात की वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नहीं है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डिस्प्ले करते उसको डिस्क्लोज करने के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग विल बी shown under direct method only. I hope I am clear. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कोई मेथड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मेथड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बाकी दोनों डायरेक्ट मेथड से ही प्रिपेयर होंगे, राइट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट मेथड ही प्रिफर करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे चार्ट में भी लिखा है, यू कैन सी इट, राइट। सो now cash flow type depends on the business of enterprise and other factors। अभी मैं आपको बात करूँ, जब हमने लोन की बात की, अगर बैंक ने लोन दिया तो वो उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हुआ, क्या वो इन्वेस्टिंग में जाएगा? नहीं, तो वो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, राइट। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। तो उसके थोड़े से एग्जांपल्स उन लोगों ने यहाँ पे दिए हैं, वो हम देखते हैं। लोन्स और एडवांसेस गिवन and interest on loans and advance given and interest earned on them in ordinary course of business or operating cash, right। मैंने अभी बैंक की बात की, उनके लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कवर होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, उन्होंने सिर्फ दूसरी एंटिटीज़ को लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा, राइट। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो बन जाएगा। आगे बात करते हैं, लोन्स एंड एडवांस गिवन टू सब्सिडियरीज, मतलब आप होल्डिंग कंपनी हो, आपने किसी अदर कंपनी में 51% से ज़्यादा होल्ड किया हुआ है, मतलब वो आपकी सब्सिडियरी बन गई। तो अगर आप उस सब्सिडियरी कंपनी की बात करें और आपने उनको लोन दिया हुआ है, दैन ऑल्सो इट विल बी कवर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दिया हुआ है, एडवांस किया हुआ है, या फिर उसमें से आपने इंटरेस्ट अर्न किया, तो वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर वेरी मच क्रूशियल फॉर योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो जब आपने लोन एम्प्लॉयज़ को दिया, इट विल बी कवर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। फिर आपने सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट किया, एक तरह से आपका एडवांस हुआ, एंड उस पर आपने इंटरेस्ट अर्न किया, तो वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। जब आपने कस्टमर्स को लेट पेमेंट किया और उसको इंटरेस्ट कस्टमर्स ने लेट पेमेंट किया और उससे आपने इंटरेस्ट रिकवर किया, तो ऐसे इंटरेस्ट को भी आप ऑपरेटिंग में कवर करेंगे, बिकॉज योर ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज कस्टमर्स, एंड ट्रेड पेबल्स, दैट इज suppliers, are crucial to your operating activities. They are directly linked with your operating principal revenue generating activities, right। तो वो सभी ऑपरेटिंग में क्लासीफाई हो गए। तो लोन्स एडवांस ऐसे बोल के हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं बोल सकते हैं, बिजनेस का नेचर देख के हमको उनका क्लासिफिकेशन करना रहेगा, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं।
आई थिंक ये लोन्स एडवांस पूरा वही रिपीट किया गया है, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐड किया है लास्ट, इफ यू कैन सी इट, interest taken as part of inventory cost in accordance with AS 16 are operating cash flows। इन्वेंट्री कॉस्ट में आपने वैल्यूएशन में AS 2 में पढ़ा कि इन्वेंट्री में आप नॉर्मली कोई इंटरेस्ट फिनेंशियल कॉस्ट है तो आप उसके वैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो AS 16 के हिसाब से कैपिटलाइज किया हुआ है तो वो आप इन्वेंट्री का पार्ट उसको बनाएंगे, मतलब उसका कॉस्टिंग करते वक्त, उसका वैल्यूएशन करते वक्त आप उस अमाउंट को कंसिडर करेंगे, राइट, एडअप करेंगे। तो जब ऐसा कोई इंटरेस्ट है AS 16 के हिसाब से तो वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कंसिडर किया जाएगा, राइट। अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड अर्न। जब हम बात करते हैं कि हमारा कोई बैंकिंग बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है, हम इन्वेस्टिंग या फिर हम इन्वेस्टमेंट की कंपनी, हम मान लो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ही इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। लेकिन जब हम कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है और हमने हमारे मतलब अच्छे बेनिफिट्स के लिए फ्यूचर के लिए हमने उसको इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। और जब हम हमारी अमाउंट्स को सब्सिडियरीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको डिविडेंड उनसे डिविडेंड्स रिसीव करते हैं, तब भी वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, राइट। सब्सिडियरी वाला पॉइंट ध्यान के रख के चलना, एग्जामिनेशन के लिए बहुत हॉट पॉइंट है, फेवरेट पॉइंट है सब्सिडियरी का। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सब्सिडियरी का, जब इन्वेस्टमेंट की बात आए तो क्या उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई करें या फिर फिनेंसिंग में, राइट। सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस सब्सिडियरी वाला पार्ट, राइट। फिर डिविडेंड्स पेड आर फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लोज फॉर ऑल एंटरप्राइज। डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो इट इज ऑब्वियसली अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी सभी एंटरप्राइजेस के लिए। फर्दर इनकम टैक्स, अगर आपने ऑपरेटिंग इनकम टैक्स पे किया तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। जब आपने TDS डिडक्ट किया, आपने TDS डिडक्ट किया ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लोज से, ऑपरेटिंग इनकम्स में से, या फिर आपने इन्वेस्ट किया कैश आउटफ्लोज को, उससे इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ, वो भी ऑपरेटिंग में जाएगा। जब आपने TDS डिडक्ट किया कोई भी फाइनेंशियल कैश फ्लोज, TDS डिडक्ट किया एक्सपेंस में से तो वो भी आपका ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो हो जाएगा, राइट। जब आप एक्सपेंस पे TDS डिडक्ट करते हैं, वो डिडक्ट किया जाता है, वो आपका इनफ्लो हो जाता है, आपको उतना पेमेंट कम करना पड़ता है। और इनकम में आपका TDS डिडक्ट होके आता है, मतलब आपको उतना कैश रिड्यूस होके आता है, तो वो आपका आउटफ्लो बन जाएगा। वो सभी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर होगा। इंश्योरेंस क्लेम की बात करें, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो वो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो हो जाएगा, राइट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के एडजस्टमेंट में आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में ही आप उसको दिखाएंगे। जब आप लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो आपका वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई होगा, राइट। तो ये हुआ हमारा ट्रिकी एडजस्टमेंट्स जिनका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस आता रहता है। एक ही आइटम को डिफरेंटली क्लासिफाई किया जा सकता है, राइट। नाउ आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने बोला है कि आपके पास दो मेथड्स है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी हम चलते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, आपको डायरेक्टली ग्रॉस रिसिप्ट्स बताने हैं और उसमें से ग्रॉस पेमेंट्स को डिडक्ट कर देने के हैं। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं वहाँ पे हम हमारा नेट प्रॉफिट लेते हैं और उसमें हमारे सभी नॉन कैश आइटम्स हैं उनका इफेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कोई वहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कोई उसमें फिगर इंक्लूड किया हुआ है, उन सभी को एलिमिनेट करते हैं। और
जो भी रह गए हैं रिसिप्ट्स उनको ऐड करते हैं, पेमेंट्स रह गए हैं उनको डिडक्ट करते हैं, और वर्किंग कैपिटल आइटम्स का भी चेंजेस है उसको भी उसमें एडजस्ट करते हैं, और उस हिसाब से हम हमारे नेट कैश फ्लो के फिगर पे पहुंच जाते हैं। राइट नाउ सी इफ यू कैन सी योर डायरेक्ट मेथड इज प्रिफर्ड ओवर इनडायरेक्ट। मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड डायरेक्ट मेथड को प्रिफर करता है बिकॉज डायरेक्ट मेथड गिव्स अस क्लियर पिक्चर ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। डायरेक्ट मेथड इज वेरी गुड फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। राइट, अगर आपको यूजर को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड अच्छे से वो डिस्प्ले करता है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एक एक्सट्रैक्ट पोर्ट्रे किया हुआ है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात की गई है। सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पहले कैश रिसिप्ट सभी बता दी, उसमें से कैश पेमेंट्स माइनस किए। देखो कैश रिसिप्ट हुई सेल्स से या फिर डेटर्स में से अमाउंट कलेक्ट हुए या फिर आपने सर्विसेज सेल किए उससे सभी रिसिप्ट हुए, आपने उसमें से माइनस किए हैं आपके परचेज, आपके ट्रेड पेबल्स का पेमेंट, एक्सपेंसेस का पेमेंट, इनकम टैक्स का पेमेंट, और आपका आया नेट फिगर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को डिडक्ट करके। राइट, फिर एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के एडजस्टमेंट किए, हमने अभी ऊपर बात की, और उससे आपको अपना नेट कैश फ्लो मिल गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। बहुत ईजी है डायरेक्ट मेथड, आई होप यू आर क्लियर। सिर्फ ग्रॉस रिसिप्ट्स माइनस ग्रॉस पेमेंट्स, एडजस्ट योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड यू गेट योर नेट कैश फ्लो। देर आफ्टर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के सभी ग्रॉस रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स करने का, वैसे आपको फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ग्रॉस रिसिप्ट्स माइनस ग्रॉस पेमेंट्स करने का, और उससे आपको मिल जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन योर कैश फ्लोज। अब उसमें ओपनिंग कैश को ऐड कर दे, आपको आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा। राइट, ये हुआ पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो आपने देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट आपका ड्यूरिंग द ईयर हुआ उसका फिगर, उसमें से आपको प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड करने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एडजस्ट करने का, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करने का, फिर वर्किंग कैपिटल आइटम्स को एडजस्ट करने का, उसमें जो चेंज आया हुआ है उसको, फिर इनकम टैक्स के पेमेंट को लेस करने का, और उससे आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद इन्वेस्टिंग तो डायरेक्ट मेथड है, ग्रॉस रिसिप्ट माइनस ग्रॉस पेमेंट, फिर फिनेंसिंग ग्रॉस रिसिप्ट माइनस ग्रॉस पेमेंट, और उससे आपको मिल जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। उसमें ऐड अप करेंगे ओपनिंग कैश तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। यह हुआ आपका इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। राइट, सो यहाँ पे हमारा पूरा स्टैंडर्ड का मेन कोर पार्ट था, वो सभी चीज़ें कवर हो गई है। अभी बैलेंस पार्ट है, थोड़ा थियोरेटिकल है लेकिन ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं फटाक से। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ नॉट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको फिक्स एसेट से को बेचने से हुआ, आपका कोई कैश फ्लो नहीं है। आप जब सेल बताएंगे पूरा अमाउंट बताएंगे, कितना कैश आया, पेमेंट करेंगे पूरा अमाउंट बताएंगे। राइट, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस है वो तो हम सिर्फ दिखाने के लिए बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन उसका कोई निस्बत नहीं है कैश फ्लो से। राइट, एंटायर प्रोसीड हम दिखाएंगे। राइट, मैंने आपको बोला अगर सेल हुआ 40,000, आपका प्रॉफिट उसमें 10,000 था तो आप 30,000 पे नहीं दिखाएंगे, 40,000 पे दिखाएंगे। सो नो नीड टू डिस्क्लोज प्रॉफिट अदरवाइज सेपरेटली। राइट, नाउ फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ कैश फ्लो प्रिपरेशन, आपको समरी निकालने की कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स की, और उस हिसाब से पूरा डेटा कंपाइल करके आपको प्रिपेयर कर देने का कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम बात करते हैं रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन नेट बेसिस। मानो कि आपका कोई रिसिप्ट हुआ और वहीं से आपका पेमेंट हो रहा है, आपने नेट बेसिस पे उसको दिखा दिया है, क्या आप उसको ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे बात इससे आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको मना करता है, फोरबिड करता है, मतलब कि वो नेटिंग ऑफ वाले कंसेप्ट को पसंद नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। सिर्फ उसके थोड़े से एक्सेप्शंस है, वहाँ पे वो अलाउ करता है। सो IAS 3 forbids netting of receipts and payments from investing and financing activities. Cash flows from following may be reported on net basis, whether operating, investing or financing. कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, आपको कस्टमर से कोई रिसिप्ट पेमेंट हुआ सेम कस्टमर से, यू कैन डू इट दैट।
फिर कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम आइटम्स ऑन विच टर्नओवर इज क्विक और अमाउंट्स आर लार्ज एंड मैच्योरिटीज आर शॉर्ट। मानो कोई ऐसा टर्नओवर मतलब हाईली रैपिडली मूविंग आइटम है, कोई टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, उसका फास्ट टर्नओवर है, मतलब चीज़ आई और उसी दिन बेच दी, और या फिर अमाउंट्स ज़्यादा लार्ज है, तो उन सभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को भी आप नेट बेसिस पे रिकॉर्ड वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अदरवाइज 3 सर्कमस्टेंसेस के लिए एस3 परमिट करता है नेट बेसिस को, रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स एंड एक्सेप्टेंस विद इन अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। उसका मैच्योरिटी डेट फिक्स है तो वहाँ पे आप उसको नेट बेसिस पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। फिर रिप्लेसमेंट एंड विड्रॉल डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर फिनेंशियल एंटरप्राइज। अगर डिपॉजिट्स का फ्रॉम अदर फिनेंशियल एंटरप्राइजेज आपने डिपॉजिट किया हुआ है, उसका प्लेसमेंट कर रहे हैं या फिर विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप फिनेंशियल एंटरप्राइजेज नहीं है। एंड एडवांस और लोन्स टू कस्टमर्स एंड रिपेमेंट्स फ्रॉम देम, तो उसके लिए भी आप नेट बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो, थोड़ा सा मैंने इसलिए फटाक से ले लिया है। Thereafter, interest and dividend. Cash flow from interest and dividend received and paid should each be disclosed separately. Interest and dividend का रिसिप्ट पेमेंट सभी आपको सेपरेटली अच्छे से डिस्क्लोज करना है, राइट। फिर उसके क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात की है, वो मैंने आगे बहुत अच्छे से समझा दी आपको, सो मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। Thereafter, non-cash transactions. Investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalents, example issue of bonus shares, should be excluded from cash flow statement. हमने आपको अगर याद हो, हमने नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडजस्ट किया था, हमने इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग में ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। वाई सो? बिकॉज इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग में जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर ही नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, वहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट के फिगर में एडजस्ट होके आया हुआ है, तो हम उसको डेप्रिसिएशन को फिगर को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं प्रॉफिट से, ताकि हमारा एक्चुअल कैश पोजीशन समझ में आए, राइट। तो वहाँ पे हम नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि जब हम इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग की बात करें तो उसका एग्जांपल इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, आपको कोई रिसिप्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर करना ही नहीं रहेगा, राइट। Thereafter, business purchase. Aggregate cash flows arising from acquisition and disposal of subsidiaries or other business unit should be separately and classified as cash flow from investing activities. मैंने अभी बोला, अगर आपने किसी और एंटरप्राइज में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका कोई सब्सिडियरी है, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। डिस्पोजल एंड एक्विजिशन, यहाँ पे आप नेट ऑफ नहीं कर सकते, शुड नॉट बी नेटेड ऑफ, राइट। Now, an enterprise should disclose in aggregate in respect of both acquisition and disposal during the period total purchase or disposal consideration, आपका परचेज का अमाउंट या फिर मतलब परचेज कंसिडरेशन या फिर डिस्पोजल कंसिडरेशन। Thereafter, portion of purchase और disposal consideration discharged by means of cash and cash equivalents, जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन है, आपने उसको कैश में कितना डिस्चार्ज किया है आप उसको बताएंगे। Treatment of current assets and liabilities taken over on business purchase. Business purchase is not operating activity. Business purchase कोई operating activity नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में हम उसको नहीं करते हैं, राइट। तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। Thus, while taking difference between closing and opening current assets and liabilities for computation of operating cash flows, closing balances should be reduced by values of current assets and liabilities taken over. जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के लिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेते हैं, करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, तब हम सभी जो वैल्यूज़ है क्लोजिंग बैलेंसेस शुड बी रिड्यूस बाय, जो क्लोजिंग बैलेंस है अपना करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, उनको हम रिड्यूस करते हैं किस वैल्यू से? करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो हमारा बिजनेस एक्वायर हुआ वो सभी जो हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को दे दिया उन लोगों को, या फिर मतलब उनको दे दिया वो हम उसमें से रिड्यूस कर देंगे, राइट।
तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज है वो ऑपरेटिंग में इफेक्ट कर देगा करंट एसेट्स लायबिलिटीज का, राइट। जब आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसका इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, लेकिन बिजनेस को परचेज किया या सेल किया उसका जो कंसिडरेशन है उसके लिए जो कैश में पेमेंट रिसिप्ट हो रहा है वो सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होगी। Exchange gain or loss. Foreign currency monetary assets and liabilities are initially recognized by translating them into reporting currency by rate of exchange on transaction date. जब हम monetary assets की बात करें, बैंक है, डेटर्स है, तो उन सभी को हम मतलब एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो द चेंज इन कैश ड्यू टू दिस एक्सचेंज गेन और लॉस, वो एक्चुअल में कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, तो वो भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भी कैश पेमेंट होगा एक्चुअल में वही अप्रोप्रिएट फुल अमाउंट हमें दिखाने की है, एंटायर अमाउंट पेमेंट की, एंटायर अमाउंट रिसिप्ट की बताने की है। सो प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं आएगी, एक्सचेंज गेन और लॉस की भी बात नहीं आएगी। सो द रिजल्टेंट डिफरेंस now change in cash due to exchange gain and losses are however not cash flows. This being so, net increase or decrease in cash are stated exclusive of exchange gains and losses, right, and reconciled in note on cash flow statement. Resultant difference between cash and cash equivalents as per cash flow statement and that recognized in balance sheet is reconciled in note on cash flow statement. फिर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हमने बैलेंस शीट में दिखाया उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल कर लेंगे कि एक्चुअल क्लोजिंग कैश मिल जाती है या नहीं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें वो डिस्क्लोज करना है। AS3 requires an enterprise to disclose amount of significant cash and cash equivalent balance held but not available for use. हमारे पास है, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। Commentary by management in case of bank balance in other countries, their exchange control, other regulations. AS3 encourages disclosure of additional information. एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का कौन से पॉइंट्स है? अमाउंट ऑफ अनड्रॉन बोरोइंग फैसिलिटीज दैट मे बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड टू सेटल कैपिटल कमिटमेंट्स इंडिकेटिंग एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ दिस फैसिलिटीज। कोई बोरोइंग फैसिलिटीज़ है जो आपने अनड्रॉन मतलब ड्रॉ नहीं की है, फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए काम आ सकती है, उनका डिस्क्लोजर देना होगा अलग से। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपको ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे आपको मेंटेन करने के लिए आपको कितना एग्रीगेट कैश चाहिएगा होगा उसके बारे में आपको बात करनी है, उसको आपको डिस्क्लोज करना होगा। तो बहुत छोटा सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इसलिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझा दिए बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्चुअल, थियोरेटिकल एंड लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता है, तो हमें सभी बात तरह से हमें उसका बात ले लेनी कवर कर ली है। अभी हम हमारे प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें थोड़े से एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, उनको हमें क्लासिफाई करने होंगे कि वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग, राइट। सी परचेज ऑफ मशीनरी आपको बताना होगा, यू नीड टू गैस इट, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी आपका फिक्स एसेट हुआ, उसका परचेज हो या डिस्पोजल हो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, राइट। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। कैश सेल्स वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपका बोरोइंग्स है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड अगेन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फिनेंसिंग एक्टिविटी। कैश परचेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
अब अगर आंसर में देखते जाएं, ए इन्वेस्टिंग, बी फिनांसिंग, राइट, सी ऑपरेटिंग, डी फिनांसिंग, ई ऑपरेटिंग, डी फिनांसिंग, ई ऑपरेटिंग। सो आप यहाँ पे टैली भी कर सकते हैं आंसर के साथ, राइट। thereafter कैश परचेज हुआ वो आपका ऑपरेटिंग हो जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। परचेज ऑफ गुडविल, this is an important, you need to star it. I am waiting for you for 1 minute. You all will give me answer, but don't see this your answer page. Please don't look at over this. परचेज ऑफ गुडविल वो आपका फिनांसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। फिर कैश पेड टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग। इंटरिम डिविडेंड पेड, फिनांसिंग। इंटरिम हो या फाइनल हो, फिनांसिंग हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑपरेटिंग। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, अगर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा तो ऑपरेटिंग होगा या फिर आपका फिनांसिंग हो जाएगा। लेट्स सी इन लोगों ने कौन सा लिया हुआ है। इन्वेस्टिंग लिया हुआ है तो पेटेंट्स भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगेन आप उसको इन्वेस्टिंग ले लेंगे, राइट। लेकिन हाँ, अगर आपको बोले कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो यू नीड टू सी के आप उसको ऑपरेटिंग में डाल दे, राइट। ये आपका इन्वेस्टिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट था उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो वो आपका फिनांसिंग एक्टिविटीज़ में कवर हो जाएगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग, राइट। पेटेंट्स और गुडविल दोनों मार्केट एज इम्पोर्टेंट फॉर योर लास्ट डे रिविजन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग। डिविडेंड पेड, फिनांसिंग। अंडरराइटिंग कमीशंस पेड, अगेन फिनांसिंग। रेंट पेड, अगर फैक्ट्री प्रीमाइसेस है तो ऑपरेटिंग आ जाएगा, राइट। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टिंग आ जाएगा। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका कैश इक्विवेलेंस। कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज सभी आपके वो हो जाएंगे कैश इक्विवेलेंट्स। एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड वो आपके ऑपरेटिंग में चला जाएगा, राइट। सो दिस इज just a second, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ये आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका कैश इक्विवेलेंट्स है, राइट। लेकिन जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट है आपका, वो एक तरह से फिनांसिंग एक्टिविटी भी हो सकता है, राइट। तो आप उसके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको फिनांसिंग एक्टिविटीज में भी कवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे एक थोड़ा आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको ये चेंज लेना होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक।
बट आपको उसको एजम्पशन के नेचर से आपको उसका चेंज लाना पड़ेगा, राइट. सो दिस वॉज अवर इलस्ट्रेशन नंबर 1. Now illustration number 2, X Limited purchased debentures of 10 lakhs which are redeemable within 3 months. How will you show this item as per AS3 while preparing cash flow statement for year ended on 31st March 2017? So you have purchased debentures मतलब कि ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, so it will be your investing activity, right. ये आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं हो, अगर ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है तो आपका कैश इक्विवेलेंट होगा. सो राइट, 3 मंथ्स का ये लोग बोल रहे हैं, तो मे बी इट कैन बी अ कैश इक्विवेलेंट. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, देन इट विल बी कैश इक्विवेलेंट, राइट. नाउ so that was that part. Now next illustration, classifying following activities as per AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. इंटरेस्ट पेड बाय फिनेंशियल एंटरप्राइज मतलब कोई बैंक है उसने इंटरेस्ट पे किया तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा. TDS ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी आपका इन्वेस्टमेंट है, उससे आपका टैक्स डिडक्ट हुआ, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई हुआ. डिपॉजिट विथ बैंक फॉर टर्म ऑफ 2 years आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, दैट इज योर फिक्स एसेट, देयरफॉर ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, दैट इज फॉर योर कस्टमर्स, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट. नेक्स्ट, following is the cash flow abstract of Alpha Limited for year ended 31st March 2017. यहाँ पर उन्हें कैश फ्लो का एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इस साइड ओपनिंग कैश दिया हुआ है, इस साइड इनफ्लोज और इस साइड आउटफ्लोज दिए हुए हैं. हमें उस हिसाब से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का है, राइट. अभी हमें कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स की बात की है, मतलब हम डायरेक्ट मेथड से पूरा कैश को प्रिपेयर कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को. सी ओपनिंग कैश एंड बैंक, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा. फिर शेयर कैपिटल, शेयर्स इश्यूड, this will be your financing activity. Collection on account of trade receivables, operating. Sale of fixed assets, that will be your investing. Payment of overheads, operating. Fixed assets acquired, investing. Debentures redeemed, financing. Bank loan repaid, if for operating, then it will go in operating. Taxation, operating. Dividends including dividend distribution tax, financing. Thereafter you will get net increase and decrease, and thereafter you need to take add up opening cash and you will get the closing cash balance, right. You can see it here, right. Now illustration number 5. Next, prepare cash flow from investing activities. अब यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो हमें प्रिपेयर करने का है. प्लांट अक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स. आपने प्लांट अक्वायर किया, प्लांट का पेमेंट किया, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, राइट. फिक्स एसेट है. क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, फिक्स एसेट के लिए आपको क्लेम रिसीव होगा, अगेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का इनफ्लो. अनसिक्योर्ड लोन्स गिवन्स टू सब्सिडियरी, आपका आउटफ्लो हुआ, सब्सिडियरी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनीज, आपका इन्वेस्टमेंट से आपका इंटरेस्ट हुआ लोन देने से, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो होगा. प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड. प्री एक्विजिशन मतलब कि सब्सिडियरी कंपनी के लिए आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव हुआ है, अगेन इट विल बी योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया तो ये आपका फाइनेंसिंग होगा, यहाँ पे नहीं आएगा. टर्म लोन रिपेड, अगेन आपका फाइनेंसिंग हो जाएगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा. TDS उस पर डिडक्ट किया, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा.
इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो आपका इनफ्लो है, TDS डिडक्ट हुआ वो आपका आउटफ्लो रहेगा। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड, लॉस इनकर्ड 9600, सी ये आपका आउटफ्लो है, सॉरी इनफ्लो है, सेल किया हुआ है तो आपको अमाउंट रिसीव हुई है, लेकिन कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 84,000 नहीं, 84,000 माइनस 9600 वो आपकी अमाउंट रिसीव की हुई है, राइट। तो वो अमाउंट लिखने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से यू कैन सी इट, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नेट कैश भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट पेड एंड टर्म लोन रिपेड आर कंसिडर्ड एज फिनेंसिंग, राइट। तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में उसको लेना नहीं होगा। एंड जब हम इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स की बात करें तो वो भी हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, तो वो भी ऊपर कंसिडर नहीं किया हुआ है, राइट। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग विद दिस स्टैंडर्ड। I hope you are clear through it. So let's revise the standard. Just a second. Right? So friends, I am ready with my chart. If you can see here, see AS3 cash flow statement. First of all, it is mandatory for level 1 entities, right? Thereafter, if you can see, we learned meaning, additional information provided to users in form of statement which reflects various sources from where cash is generated and from where this cash was utilized, right? So the cash inflows and outflows. Thereafter, cash and cash equivalents, your cash in hand and deposits repayable on demand, and cash equivalents, short term highly liquid investments that are convertible in cash within 3 months maturity. Thereafter, we see in the types of cash flows: operating, investing, financing, operating, principal, revenue generating activities को जो भी आपके कैश फ्लोज रिलेट कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग हो गए, इन्वेस्टिंग, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स, एंड अगर आपका अदर कोई इन्वेस्टमेंट है और उसके कोई इनकम है वो या फिर एक्सपेंस है वो सभी यहाँ पे कवर होंगे। Thereafter, financing activities that results in changes in size and composition of your owner's capital including preference capital and borrowings, right, वो सभी यहाँ पे financing में कवर हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि ऑपरेटिंग के लिए 2 मेथड है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, डायरेक्ट। तो मैंने कैश फ्लो का वही एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में सभी अमाउंट एडजस्ट होगी, डायरेक्ट में सभी ग्रॉस रिसिप्ट्स माइनस ग्रॉस पेमेंट्स किए जाएंगे। और जब हम नेट बेसिस की बात करें, AS3 परमिट नहीं करता है, लेकिन कई जगह पे जब कस्टमर्स का पेमेंट है या फिर टर्नओवर की है या फिर लार्ज अमाउंट है या फिर एक्सेप्टेंस एंड रिपेमेंट ऑफ विद इन फिक्स मैच्योरिटी है डिपॉजिट्स की, प्लेसमेंट एंड विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स है, या फिर एडवांस और लोन दिया हुआ है कस्टमर्स को, तब आप अपने अमाउंट्स को नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से मैंने पूरा ये चार्ट में आपका AS3 कवर कर लिया है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। We revised the whole standard, we gone through the illustrations, we understood it. I hope you are clear through it. If you have any queries you can contact me, right? Thank you, have a good day.